नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। कृषि विभाग द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रचार वाहन को केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा ने चालना दी। बीदर जिला कांग्रेस द्वारा केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का विरोध प्रदर्शन। पूर्व सीएम एस एम कृष्णा को केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड मिला। एसएसएलसी की सप्लीमेंट्री परीक्षा आज से शुरू। राष्ट्रपति चुनाव के लिए यशवंत सिन्हा ने किया नामांकन। शिवसेना का कोई नेता नहीं रहा मौजूद। संजय राउत को ईडी का समन, कल पूछताछ के लिए बुलाया। अब समाचार विस्तार से। देखते हैं स्थानीय समाचार। बीदर कृषि विभाग द्वारा आज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रचार के लिए कृषि विभाग कार्यालय से 6 वाहनों को केंद्रीय राज्य उर्वरक मंत्री भगवंत खुबा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि किसानों के नुकसान की भरपाई बीमा से की जा सकती है और यह योजना पिछले 6 साल से चली आ रही है। इस अवसर पर जिला पंचायत कार्यकारी अधिकारी जाहिरा नसीम, कृषि विभाग की संयुक्त निर्देशक तारामणि सहित कृषि विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। कैमरामैन साबिर खान का कवरेज। ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 6 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಫಸಲ್ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ರೈತರ ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯಾದಾಗ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುವುದರಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1 ಆಗಿದೆ। ಹೀಗಾಗಿ ಈ ವರ್ಷ ಕೂಡ 22-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಖರೀಫ್ ಬೆಳೆ ಬಿತ್ತನೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ। ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ತ ರೈತ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಬಿತ್ತನೆ ಆದಂಥ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಫಸಲ್ ವಿಮೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು। ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಅನಾವೃಷ್ಟಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಹಾನಿಯಾದಾಗ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ವಿಮೆ ಕಂಪನಿಯವರು ನಿಮಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡೋದನ್ನು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ। ಹೀಗಾಗಿ ಸಮಸ್ತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರೈತ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಫಸಲ್ ಬಿಮೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ। बीदर जिला कांग्रेस समिति द्वारा आज शहर के तहसील कार्यालय के सम्मुख केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरुद्ध प्रदर्शन किया गया। इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व विधायक रहीम खान, जिला कांग्रेस समिति के अध्यक्ष बसवराज जापशेट्टी, पूर्व सांसद नरसिंह राव सूर्यवंशी ने किया, जहां कांग्रेस ने सरकारों के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। इस अवसर पर चंद्रकांत हिपड़गांव, अमृतराव चिमकोट, संजय जागीरदार, इरशाद अली, मोहम्मद फारीद खान सहित अन्य उपस्थित रहे। कैमरामैन साबिर खान का कवरेज। नमस्कार। ಇವತ್ತು ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಲಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಇದೆ। ಇದರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಯಾಕಂದರೆ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ BJP ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರಿಗೆ ಧೋಕಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಯಾಕಂದರೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, 4 ವರ್ಷ ಯಾವುದೂ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ಇವ್ರು 4 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಜಾಬೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಒಂದು ಫೌಜಿಗೆ 4 ವರ್ಷನಲ್ಲಿ ಫೌಜಿ ಬರೀ ಬಾರ್ಡರ್ನಲ್ಲಿ ತಿರುಗಬೇಕಂದ್ರೆ 4 ವರ್ಷ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ। ಆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ನಲ್ಲೇ ಒಂದು 2-3 ವರ್ಷ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ 6 ತಿಂಗಳು ವೆಕೇಷನ್ ಇರ್ತದೆ। ಇದು ಎಲ್ಲ ಆದ್ರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ 4 ವರ್ಷ ಆದ್ರ ಮೇಲೆ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಒಬ್ಬರು BJP ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅವ್ರು ರಿಟೈರ್ ಆದರೂ ನಾವು BJP ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲೇ ಅವರಿಗೆ ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಲಿ ಗಾರ್ಡ್ ಆಗಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತೀವಂತ ಬೀದರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ವತಿಯಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಂಥ ಈ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ನ ಶಾಸಕರ ರಹೀಮ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ।
2 ತಾಸಿನಿಂದ ಇದು ಏನದ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟದ ಅಗ್ನಿಪಥ ಏನದ ನಿಯೋಜನೆ ಏನದ ಈ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಮೋದಿಯವರೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನೇನದ ನಾವು ಖಂಡನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸೈನಿಕರ ಬಗ್ಗೆ ಏನದಾದ್ರೆ ಒಂದು ಚೆಲ್ಲಾಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು. ಇವತ್ತು ಸೈನಿಕರ ಜೀವನ ಅಂತಂದರೆ ಇವತ್ತು ದೇಶಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡುವಂಥ ಇವತ್ತು ಸೈನಿಕರು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಂತಂದರೆ ಈ 4 ವರ್ಷದ ಸ್ಕೀಮ್ ತೆಗೆದು ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಏನದಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಇರಲಾರ್ದಂಗೆ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗಿ ಏನದಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡೋ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ಯಾರ್ದಾರು ಹೋಗಿ ಗಾರ್ಡು ಅದು ಇದು ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನದಂದ್ರೆ ಇದು ಉಪಯೋಗ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಏನದಂದ್ರೆ ಅವರು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಸೈನಿಕರಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಏನದ ನಾವು ಈ ಧರಣಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗಾದರೂ ಮೋದಿಯವರು ಏನದಾದ್ರೆ ಹೆಸರತ್ತೇನದಾದ್ರೆ ಇದನ್ನೇನಾದ್ರೂ ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಧರಣಿ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. केंद्र और राज्य सरकार ने पशुपालन और पोषण पर अरबों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन पशु चिकित्सकों की लापरवाही का खामियाजा बेजुबान मवेशियों को भुगतना पड़ रहा है। यह हालात कहीं और की नहीं बल्कि पशुपालन मंत्री प्रभु चौहान के गृह क्षेत्र औरात की है, जहां पशुओं के साथ अन्याय किया जा रहा है। पशुओं का इलाज ठीक से नहीं किया जा रहा है और दवाइयां बर्बाद हो रही हैं। इससे क्षेत्र के किसान अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। इस पर मंत्री चौहान को लापरवाही बरत रहे अधिकारी व कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ಈಗೇನ ಒಂದು 8-10 ದಿನ ಹಾದಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. 8 ದಿನ ಇವ್ರು ಏನು ಕೇರ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮುದ್ದು ಇವ್ರು ಆಫೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ನಾವು ಧರಣಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿರಿ? ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆವು. ದವಾಖಾನೆ ಏನಾದ್ರು ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಯ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಜು ಜಾಗ ಅದ, ಬೇರೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಕಿಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆವು, ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆವು. ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ 4 ಪೈಕಿ ಹೇಳಿದೆವು, ಅವು ಯಾರೂ ಕೇರೆ ತಗೊಳಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇವ್ರಿಗೆ ಏನದಂತಂದ್ರೆ ಬರೀ ಎಂಬುದು ಕೂಡೋದು, ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬರೋದು, ಹಾಜರಿ ಹಾಕೋದು, ತನಕ ತೊಗೊಬೋದು, ಕೂಡೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಊರ ಮ್ಯಾಗ ನಮ್ಮ ದನ ಕರಿಮ್ಯಾಗ ಇವರು ವರ್ಷಾಂಶ ತಿಂಗಳ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಪಗಾರ ತೊಗೊಂಡು ತಿರ್ಲಾಕ ದವಾಖಾನೆ ಯಾಕೆ ನೋಡಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. औरात के कमलनगर तालुका के डाबका में कल शाम तूफानी बारिश से क्षेत्रवासी दहशत में रहकर घरों से बाहर निकलने में डर महसूस कर रहे हैं। बीती रात तूफानी बारिश से गांव को नदी सामान्य कर दिया है, जिससे ग्रामीण चिंतित है। बारिश इस प्रकार हुई है कि मानो कमलनगर पर बादल फटा है। लोग आज भी बारिश के प्रकोप से घबराए हुए हैं। राज्य में अल्पसंख्यक के विकास के लिए जितनी भी योजना शुरू की गई वह सब येडियुरप्पा द्वारा शुरू की गई थी। यह बात कर्नाटक अल्पसंख्यक विभाग के राज्य अध्यक्ष केनेडी शांत कुमार ने कही। वह आज शहर में भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से बात कर रहे थे। इस अवसर पर तालुका अध्यक्ष सलाउद्दीन और राज्य कार्यकारिणी सदस्य सैयद इलियास आदि उपस्थित रहे। कैमरामैन साबिर खान का कवरेज। ನಾನು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗ 1.5 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ, ಬಹುಶಃ 2 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಯ ಪ್ರಮುಖರು ನನ್ನನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷನನ್ನಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಈ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ನ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ಅದರ ಮೊದಲನೇ ಭಾಗವಾಗಿ ನಾನು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಇವತ್ತು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿಶೇಷ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಈ CDC 2011ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಂಥ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡಂಥ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಿರ್ಧಾರ. ಅವತ್ತಿನ ತನಕನೂ ಸಹ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಸಮಿತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಮತ್ತು ಅವತ್ತಿನ ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಯ ಪ್ರಮುಖರು ಕ್ರೈಸ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಒಂದು
ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು ಇದು ಇತಿಹಾಸವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಒಂದು ತುಷ್ಟೀಕರಣ ನೀತಿಯನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮೇಲೆ ಬರೀ ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ अब देखते हैं समाचार राज्य की। इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन सुधा मूर्ति, कर्नाटका के पूर्व सीएम एसएम कृष्णा और प्रकाश पादुकोण बैडमिंटन अकादमी के बैडमिंटन कोच विमल कुमार को सोमवार को कर्नाटका के सीएम बसवराज बोम्मई द्वारा नवस्थापित केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार बेंगलुरु के संस्थापक पिता केम्पेगौड़ा के नाम पर उनकी 513वीं जयंती के अवसर पर स्थापित किया गया है। कर्नाटका माध्यमिक शिक्षा परीक्षा बोर्ड ने घोषणा की है कि एसएसएलसी सप्लीमेंट्री परीक्षा सोमवार से उचित कोविड-19 सावधानियों के साथ शुरू की गई है। आज निर्धारित पहला विषय विज्ञान है कि परीक्षा बोर्ड के अनुसार 11,415 स्कूलों के कुल 94,649 छात्रों ने परीक्षा के लिए पंजीकरण कराया था। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने अधिकारियों को हुबली धारवाड़ स्मार्ट सिटी परियोजना से संबंधित सभी कार्यों को 1 साल के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री हुबली में हुबली धारवाड़ स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत नागरिक बुनियादी ढांचे के कई कार्यों का उद्घाटन करने के बाद बोल रहे थे। बोम्मई ने कहा कि 2014-15 में शुरू किए गए स्मार्ट सिटी के कार्यों को 2020 में पूरा किया जाना था और अधिकारियों को चालू वित्त वर्ष के 31 मार्च से पहले सभी चल रहे कार्यों को पूरा करने का निर्देश दिया। अब समय एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं।
अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 and 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बिदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बिदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148 08482227010। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष के साझा उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन कार्यक्रम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, एनसीपी के प्रमुख शरद पवार, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता सीताराम येचुरी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला समेत कई विपक्षी दलों के नेता मौजूद रहे। लेकिन इस नामांकन कार्यक्रम में शिवसेना की तरफ से कोई भी नेता मौजूद नहीं रहा। वहीं इससे पहले एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने भी शुक्रवार 24 जून को अपना नामांकन दाखिल किया था। उनके नामांकन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों समेत एनडीए के घटक दलों के कई नेता मौजूद रहे। महाराष्ट्र में सियासी घमासान के बीच शिवसेना के सीनियर लीडर संजय रावत को प्रवर्तन निदेशालय ने समन भेजा है। उन्हें पूछताछ के लिए कल बुलाया गया था। बताया जाता है कि उन्हें प्रवीण रावत और पात्रा चौल भूमि घोटाले के मामले में तलब किया गया है। हालांकि इस मामले में पहले भी ईडी अस्थायी तौर पर संपत्ति कुर्क कर चुकी है। वहीं इस बीच संजय रावत का बयान भी आ गया है। उनका कहना है कि वे पेश होने के लिए ईडी से और समय की मांग करेंगे। इस बयान के बाद उन्होंने ट्वीट कर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। ईडी के समन पर संजय रावत ने ट्वीट कर कहा, महाराष्ट्र में बड़ी राजनीतिक लड़ाई लड़ी जा रही है और इसे रोकने के लिए ऐसा किया गया है। उन्होंने कहा कि हम बाला साहेब के सैनिक हैं। संजय रावत ने यह ट्वीट मराठी में किया है। तेलंगाना में सत्तारूढ़ टीआरएस ने सोमवार को कहा कि वह राष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी दलों के संयुक्त उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का समर्थन करेगी। जब सिन्हा इस शीर्ष पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल कर रहे थे, तब तेलंगाना राष्ट्र समिति के कार्यकारी अध्यक्ष एवं राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी एवं उद्योग मंत्री केटी रामा राव अपनी पार्टी के सांसदों के साथ वहां मौजूद थे। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के बेटे रामा राव ने इससे पहले ट्वीट किया था, टीआरएस के अध्यक्ष श्री केसीआर गारू ने भारत के राष्ट्रपति पद के चुनाव में यशवंत सिन्हा की उम्मीदवारी का समर्थन करने का फैसला किया है। उन्होंने लिखा, मैं आज नामांकन में अपनी पार्टी के सांसदों के साथ टीआरएस का प्रतिनिधित्व करूंगा। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने अपने पहले बजट में 300 यूनिट फ्री बिजली का वादा पूरा कर दिया है। प्रदेश में 1 जुलाई से अब 300 यूनिट तक की बिजली मुफ्त मिलेगी। वित्त मंत्री हरपाल सिंह
हरपाल सिंह चीमा ने राज्य का बजट पेश करते हुए यह ऐलान किया। उन्होंने कहा कि पंजाब के हर घर को अब 1 जुलाई से हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। सरकार इस योजना पर खर्च के लिए वित्तीय व्यवस्था करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस बजट में शिक्षा पर भी जोर दिया जा रहा है। पंजाब में स्कूली और उच्च शिक्षा के बजट में 16% का इजाफा किया गया है। तकनीकी शिक्षा बजट में 47% और मेडिकल शिक्षा बजट में 57% का इजाफा किया गया है। साथ ही यह भी ऐलान किया गया कि पंजाब में स्कूलों के रखरखाव के लिए एस्टेट मैनेजर रखे जाएंगे। पंजाब के सरकारी स्कूलों में एस्टेट मैनेजरों की नियुक्ति की जाएगी ताकि प्रिंसिपल केवल शिक्षा से जुड़े कर्मों पर फोकस कर पाए। महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट के बीच सुप्रीम कोर्ट में डिप्टी स्पीकर की भूमिका पर ही सवाल खड़े हो गए हैं। एकनाथ शिंदे गुट की ओर से 15 विधायकों को आयोग ठहराए जाने के नोटिस के खिलाफ दायर अर्जी पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर के रोल पर सख्त टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि यदि बागी विधायकों ने उनके ही खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था तो कैसे उन्हें नोटिस जारी किया गया। जस्टिस सूर्यकांत ने सवाल किया कि अपने खिलाफ दायर अर्जी पर कैसे डिप्टी स्पीकर खुद ही जज बन गए। इस पर डिप्टी स्पीकर की ओर से पेश वकील राजीव धवन ने कहा कि उनके खिलाफ जो नोटिस आया था वह अनवेरिफाइड ईमेल से भेजा गया था। अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर को हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। पाकिस्तान के सिंध में स्थानीय निकाय चुनाव के पहले चरण के दौरान रविवार को हुई चुनावी हिंसा में पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के भाई सहित 2 लोगों की मौत हो गई। रविवार सुबह सभी 14 जिलों में मतदान शुरू होने के साथ ही चुनाव आयोग को सिंध के ऊपरी और निचले क्षेत्रों से हिंसा, हाथापाई और कथित कुप्रबंधन की सूचना मिलने लगी थी। रविवार दोपहर संघर और सुकर में एक मौत होने की सूचना मिली थी, जिनकी पुष्टि बाद में पुलिस ने कर दी। उन्होंने बताया कि संघर के नगरपालिका क्षेत्र में मृतक एक उम्मीदवार का भाई था। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। आलिया भट्ट की प्रेगनेंसी पर आखिरकार महेश भट्ट ने भी दिया रिएक्शन, बोले शानदार डेब्यू। अब देखते हैं समाचार खेल जगत के। वीरेंद्र सहवाग ने सुझाया T20 वर्ल्ड कप 2022 में कैसा होना चाहिए टीम इंडिया का बैटिंग और बॉलिंग कॉम्बिनेशन। अंत में समाचार बाजार के। हफ्ते में 4 दिन काम, 3 दिन आराम। मोदी सरकार 1 जुलाई से लागू कर सकती है नए नियम। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। कृषि विभाग द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रचार वाहन को केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा ने चालना दी। बीदर जिला कांग्रेस द्वारा केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का विरोध प्रदर्शन। पूर्व सीएम SM कृष्णा को केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड मिला। SSLC की सप्लीमेंट्री परीक्षा आज से शुरू। राष्ट्रपति चुनाव के लिए यशवंत सिन्हा ने किया नामांकन, शिवसेना का कोई नेता नहीं रहा मौजूद। संजय राउत को ईडी का समन, कल पूछताछ के लिए बुलाया। केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7 से। धन्यवाद।